लोग बहुत झूठ बोलते हैं, वो आपकी भी झूठी तारीफ करेंगे और आपसे अपने मतलब को साध लेंगे, अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, आपको उल्लू बना देंगे सम्मान दे दे करके। इसलिए सम्मान लेने वाले समझदार लोग नहीं होते, सम्मान देने वाले समझदार लोग होते। Just think over what I have said. Most of the time, we like to get good compliments from people, but we are so miser, we never give good compliments to others. Just think over, do you really do this? Are you liberal enough to pay good compliments to people around you? Do you make a point to say good and nice things about the people who are around you? You never do that. Although you like very much when someone else says good things about you. And this one thing is so surely clear to me, and I wish to make it clear for you also, that most of the times when someone is giving you a good compliment is not doing it with all sincerity. They have some vested interest, they want something from you, maybe today, maybe tomorrow, and they are preparing the ground in your heart that whenever they ask anything from you, you won't be able to say no to them just because they have placed you at a higher pedestal. Be very liberal to give good compliments to others. But if someone gives such compliments to you, be smart enough to say, for example, someone says, you look very nice. You can always say, please give this compliment to my parents. Because my parents' genes are in me. So if I have a good face or good physique, it is because of my parents. Thank you very much, but I have nothing to do with this body or shape or size. If someone says that you are very intelligent, don't be a fool and give a smile. Be very cautious and say, well, that is a good training of my teachers. My teachers have trained me well. And with God's grace, my brain works well. And I can remember all the things, whatever I read. So thank God. I have a good brain. Thank God that my brain is functioning. But most of the time when someone gives you a good compliment, you are just ready to grab it and take all the mileage out of it. And that is a big pitfall. And that is going to be a big trap for you. Be nice to people. Actually, the more nice you are to others, somewhere, one day or the another day, all these niceties are going to come back to you. Because whatever you give to others, it is going to come back to you. That's another law. जब आप के संस्कार अच्छे हों, तब ये सब बातें आपके अंदर अपने आप से आने लग जाती, क्योंकि माँ बाप, आपके घर का माहौल, सबकी सोच इस तरह से होती, तो बच्चा अपने माँ बाप से सीखता है, पैसिवली सीख जाता है। और जब बैठा के माँ बाप कोई अच्छी बात सिखाएं तो उसको तो सीखता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे घर के वातावरण का बहुत असर हमारे ऊपर आता है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आपके घर में घर के आपके बड़े, माँ पिता, दादा दादी, जो भी फैमिली मेम्बर्स आपके घर में रहते हैं, क्या सुबह 5 बजे जग जाते हैं? जिनके जगते हो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, नीचे रखिए हाथ। वो 5 बजे जगते हैं तो आप 5 बजे जग जाते हैं? अच्छा, किनके घर के लोग 8 बजे के बाद उठते हैं और 9 बजे के बाद? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब आप
सो रहे हों और आपके घर के लोग जग रहे हों, अब मैं अगला सवाल कर रही हूँ, जब वो घर के लोग जगते हैं तो जगने के बाद क्या वो योगासन करते हैं? हाथ खड़ा करके उत्तर दीजिए। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फिर वो बैठ के क्या जप भी करते हैं? बहुत अच्छे। तो जब वो जप कर रहे होते हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं? कल हमने ये बात कही थी कि शरीर को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आसनों का बहुत उपयोग होता है। उसी के साथ हमने एक चीज़ और जोड़ी थी, और वो यह कि अगर हम मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप से भी हमारे भीतर बहुत से सुंदर परिवर्तन आते हैं। हमारे शरीर में ग्रंथियों का एक नेटवर्किंग है। कल आपने एक वीडियो देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इसी तरह हमारे मस्तिष्क में एक और ग्रंथि है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। इसी तरह हमारे गले में इस जगह पर कंठकूप में एक ग्रंथि है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। इसी तरह थायराइड से और नीचे हमारी एक और ग्रंथि है जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। इसी तरह हमारी किडनीज के टॉप के ऊपर एक ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड। इसी तरह स्त्रियों और पुरुष में दो दो ग्रंथियां जिन्हें हम गोनाड्स भी बोलते हैं, स्त्रियों के ओवरीज में होती है और पुरुषों के टेस्टीज में होती है, अंडकोश में होती है। तो मस्तिष्क से लेकर के और आपके जेनिटल्स तक ये प्रमुख ग्रंथियां कुछ हैं। इन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे कुछ ग्लैंड्स हमारी इंटेस्टाइन्स में भी हैं, हमारे मुंह में भी हैं। हमारे पूरे शरीर का जो सिस्टम है उसको चलाने के लिए किन्हीं एक विशेष रसायनों की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन आता है। जब आप सोते हो एक आयु तलक, जैसे मैं कहूँ अगर 12 साल की आयु तलक 8 घंटे सोना भी अच्छा ही है, क्योंकि जितना आप सो रहे हैं ना उस समय में पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन मतलब रसायन। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं ये आपकी हड्डी के ढांचे को बड़ा करते हैं, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, आपके शरीर में जो समय के साथ साथ जैसे जैसे चेंजेस आनी चाहिए वो सब चेंजेस आपकी नींद में आती है। इसी तरह हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरॉक्सिन, हमारे ग्लैंडों से TSH, ACTH, इस तरह के बहुत सारे रसायन जो हैं वो पिट्यूटरी से आते हैं। फिर इसी तरह आपका ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये एक ऐसा ग्रंथि है, ये जो एक ऐसा ग्लैंड है जो ना केवल रसायन को रिलीज करता है बल्कि ये स्टोर भी करता है। इसके यहाँ स्टोरेज भी होती है, पर ये स्टोर किए हुए रसायन रिलीज कब होंगे? जब ऊपर पिट्यूटरी से ऑर्डर आएगा। पिट्यूटरी से ऑर्डर कब आएगा? जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा। हाइपोथैलेमस ऑर्डर कब देगा? जो ब्लड का टेम्परेचर है, जो ब्लड का प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ का एनालिसिस हाइपोथैलेमस करता है और फिर वो आगे आदेश देता है, और आदेश आने पर पिट्यूटरी ऑटोमेटिकली आगे फर्दर सब ग्रंथियों को ऑर्डर दे देता है। अब हमारे शरीर की जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि हुई वो हुई हैं तो सारी ही महत्वपूर्ण, ऑल ऑफ दिस ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल वी कैन से 2 ऑफ द ग्लैंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नाउ एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ chanting, in context of doing the mantra jap. One is the pituitary and the second is your thyroid gland. One is pituitary and the second is your thyroid gland. And when you do chanting, you are actually putting a great effect on your these two glands.
The first thing and the foremost thing, you can always check. And you have always experienced this. When someone says a good word to you, you feel good, right? When someone says a bad word to you, you feel bad. When someone insults you, you feel angry. When someone gives you good compliment, you feel happy. What did the other person give to you? Set of words. What was it? Set of words. And behind those words were the intentions. जैसे आपको कोई जो बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, माँ है, पापा है, दादा है, दादी है, जो भी है, बहुत प्यार करने वाला इंसान आपको पास बुलाए और बुला करके कहे मोटे इधर आ, कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा? मैं कनाडा की बात सुनाती हूँ। मैं जब पहली बार वहाँ गई तो एक लुधियाना के पास गांव है, उस गांव से गए हुए परिवार के घर में मुझको रुकाया गया था। तो वो महिला मुझे कहती है कि जब हम यहाँ पर आए तो इतने सुंदर सुंदर बच्चे, उनके सुनहरी बाल, गोरी चिट्टी चमड़ी, और माएँ जो हैं वो अपने बच्चे को बगीचे में खिला रही हैं और प्रेम में घुमा रही हैं, और जब उनसे लाड करें तो माई गोल्डी लॉक, माई ब्यूटी, माई फेरी, माई डॉल, बोले ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर शब्द बोले। कहती जब हम उनके बच्चे देखें और जब हम अपने बच्चे देखें तो लगे हमारे तो काले से हैं सारे, ना उनके सुनहरी बाल हैं, ना वो गोरे हैं। बोले उनके बच्चे भी मोटे ताजे हमारे। कहती जैसी मैं चूहिया सी ऐसा मेरा आगे बच्चा भी ऐसा ही होएगा। मैं जब तगड़ी नहीं हूँ तो मेरा बच्चा इतना तगड़ा कैसे होगा? कहती अब वो जब लाड करे तो उनको देख के मेरा भी बड़ा जी करे कि मैं भी अपने बच्चे को कोई सुंदर सुंदर नाम दूं। कहती मेरे तो अब ऐसा, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बहुत अच्छे स्कूल नहीं गई हूँ, बहुत अच्छे लोगों के साथ उठी बैठी नहीं हूँ। बोली भैंसों के ऊपर बैठ के तो नहाने चले जाते थे छप्पड़ में। कहते हम तो उस तरह की जगह से आ रहे हैं, अब सडनली हम टोरंटो में बैठे हैं और ऐसे लोगों के बीच में बैठे हैं, पर चाव तो मन में सबके ऐसे ही है जैसे हर इंसान अंदर सा एक सा ही तो महसूस करता है। तो कहती मैंने भी अपने बच्चे को उठाया, मैं उसके साथ लाड करूं, मेरा छन्नन मन्नन, मेरी चाम चड़िक, काला है पतला सा है बच्चा। तो कहती हम कह रही अब जो मेरे आसपास वाले हैं वो गोरे हैं, उनको क्या समझ आवे कि मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं अपने बच्चे से खेल रही हूँ और पीछे से एक पंजाबी महिला वो आई और उसने कहा अरे तेरा दिमाग खराब है, अपने बच्चे को तू चामचड़ी को बुला रही है, तेरा बच्चा चमगादड़ है क्या? कहती नहीं बात वो नहीं है, अब मेरे को समझ नहीं आ रही थी, प्यार आ रहा था तो मैं तो प्यार में बोल रही थी। बड़े होने पर उसने अपनी बेटी को ये बात बताई कि मैं तेरे को चामचड़ी को बुलाती थी। अब आपको क्या लगता है उस बच्ची ने जब ये बात सुनी होगी तो उसे गुस्सा आया होगा अपनी माँ पर? हाँ? उसे ये पता है कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती थी कि उसने अपने प्यार को जाहिर करने के लिए क्या शब्द बोले, सवाल इसका नहीं है, उसका प्यार कितना था कि वो भी अपने बच्चे से लाड करने की इच्छा से, अपने बच्चे को प्यार करने की इच्छा से कुछ ऐसे शब्द बोलती थी जिससे अब बच्चे को तो समझ नहीं आ रही है उस समय पर माँ खुश होती है उन शब्दों को बोल के। अच्छा जब बच्चा बड़ा हो जाए और माँ और बाप अभी भी उसको छोटे बोझ बचपन में जो नाम, जैसे अक्सर कईयों के नाम, लड़का थोड़ा मोटी मोटी गाल वाला हो तो उसका नाम गोलू रख देते, खैर नाम कुछ भी हो गोलू। और एक के घर में मैं गई, 4 बच्चों का खुद बाप है और उसकी माँ उसे बुलाए गोलू। मैं अब तो ये बड़ा हो गया, अब क्यों गोलू बुलाते ही, इसका नाम जो है वो बुलाओ। कहते क्या करें आदत पड़ गई है। और उसको भी बुरा नहीं लग रहा है कि मेरी माँ मुझे इस नाम से क्यों बुला रही। इसका मतलब हमें शब्द दुखी नहीं करते, उन शब्दों के पीछे जो इंटेंशंस होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, हम उससे दुखी होते। बात समझ लगी?
हम शब्दों से खुश नहीं होते हैं, हम उन शब्दों के पीछे जिस भावना का इस्तेमाल किया गया हो, हम उस भावना से प्रभावित होते हैं। अब इसी तरह से मंत्र जप में मंत्र क्या आप बोल रहे हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात होती है कि आप किस भावना से बोल रहे हैं, आपकी भावनाएं कैसी हैं, आपकी सोच कैसी है। हाथ में माला ले ली और राम 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 ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी को पत्थर मार रहे हो। ऐसे राम राम बोल रहे हैं क्योंकि किसी ने बोला है कि 2 माला रोज करनी चाहिए, तो बैठे वो माला देख रहे हैं, बच्चे पूरी नहीं हुई, अच्छा पूरी नहीं हुई, ना उसमें मन है ना उसमें भावना है। तो ऐसे मंत्र जप करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। When you do your chanting, at that particular moment, it is very, very important that you should be clear in your heart and you should have lots of great good feelings about the mantra, about the time which you have been given to do and sit in peace, in prayerfulness. So those intentions, those feelings are very, very important. Secondly, when you do the chant, what do? You are using certain words and every word is going to produce a certain vibration, right? शब्द की जो तरंग होती है, वह तरंग हमारे ग्रंथियों पर प्रभाव लाती है।